السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ حکومت کو اقلیتی بہبود کی اسکیموں پر عمل آوری میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مالیاتی سال ختم ہونے کے لیے صرف ایک ماہ باقی، 1000 کروڑ روپے کے من جملہ 400 کروڑ روپے بھی خرچ نہیں کیے گئے۔ تلنگانہ ملازمین کے فٹمنٹ میں 43% اضافے کے فیصلے پر عمل آوری کا 1 سال سے انتظار۔ گرانی الاؤنس میں اضافے کے فیصلے پر بھی پردے۔ ریاستی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 مارچ کو شروع ہونے کا امکان۔ 10 مارچ تک کھمم، ورنگل اور سدی پیٹ کے بلدی انتخابات کا عمل مکمل کر لینے کا منصوبہ۔ تاریخی چار مینار کی تزئین نو کے کام میں انتہائی سست رفتاری، سیاحوں کو مایوسی۔ حفاظت کے نام پر لگائے گئے CCTV پول سے بھی سیاح ناراض۔ اور 10ویں جماعت کے امتحان کے دوران امتحانی مراکز پر CCTV کیمروں کی تنصیب کا فیصلہ ملتوی۔ روبہ عمل لانے میں مشکلات کے پیش نظر فیصلہ۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ جاریہ مالیاتی سال میں محکمہ اقلیتی بہبود کا بجٹ 1000 کروڑ سے زائد ہونے کے باوجود 400 کروڑ روپے بھی خرچ نہیں کیے گئے۔ شادی مبارک اسکیم پر عمل آوری کو چھوڑ کر دیگر تمام بہبودی اسکیمیں کاغذی کارروائیوں تک محدود رکھ دی گئی ہیں، یا پھر محدود پیمانے پر عمل آوری کر کے نام تو کر لیا گیا تو بجٹ بچا لیا گیا۔ سال 2014-15 کے بجٹ میں اقلیتوں کو بینک سے مربوط قرض فراہمی کی اسکیم پر مؤثر عمل آوری نہیں ہو پائی ہے۔ جاریہ سال بھی عوام سے اسی طرح درخواستیں لی جا رہی ہیں اور کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہوئے تاریخ میں توسیع کرتے ہوئے اقلیتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ جاریہ سال تو صرف 8000 افراد کو اس اسکیم سے فائدہ ہوگا، جس کے لیے 100 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اس اسکیم کے لیے 30,000 سے زائد فارمز موصول ہوئے ہیں، جو کہ گنجائش سے زیادہ ہے۔ اس کے باوجود اس کی تاریخ میں مزید توسیع کی گئی ہے، جبکہ مالیاتی سال ختم ہونے کے لیے صرف 1 ماہ کا عرصہ باقی ہے۔ اس 1 ماہ میں وصول کی گئی درخواستوں کی یکسوئی نہ ہونے پر جاریہ سال کی رقم ٹریزری کو واپس کر دی جائے گی۔ صرف حیدرآباد کی حد تک دیکھا جائے تو 3032 افراد کے لیے 33.53 کروڑ کا نشانہ رکھا گیا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اب تک بینکس کو ٹارگٹس تک نہیں دیے گئے ہیں۔ اب تمام حقائق سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تلنگانہ ریاستی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 مارچ سے ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق 14 تاریخ کو وزیر فائنانس ریاستی بجٹ پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں سرکاری طور پر تو اعلان نہیں کیا گیا ہے، تاہم باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ان تواریخ کو قطعیت دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے 29 فروری سے بجٹ منعقد کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ نے اس کو لمحے آخر میں ملتوی کر دیا، کیونکہ وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں کہ 10 مارچ سے قبل کھمم، ورنگل اور سدی پیٹ کے بلدی انتخابات کا عمل مکمل کر لیا جائے۔ مالیاتی سال کے ختم ہونے کے وقت حکومت کی جانب سے سرکاری پورٹل کو بند کر دینا اور عوام کو رقم کی اجرائی سے بے خبر رکھنے کی کوشش کرنا شکوک و شبہات کے دروازے کھول رہا ہے۔ ایسے میں حقائق پر مبنی بجٹ پیش کرنے کے دعوے کو ماننا عوام کے لیے مشکل ہوگا۔ پیش ہے ہمارے نمائندے شمش الدین فیروز کی یہ رپورٹ۔ سنہرے تلنگانہ کے سنہرے بجٹ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ حکومت نے اس بار کا بجٹ انوکھا اور منفرد پیش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ قریب 1,40,000 کروڑ کا بجٹ پیش کرنے کا منصوبہ ہے اور اس بار کے بجٹ کی بنیاد 0 پر رکھی گئی ہے، یعنی زیرو بیس بجٹ تیار کیا جائے گا، جس کا مطلب نہ خسارہ اور نہ ہی فاضل بجٹ ہوگا۔ حکومت نے پہلے ہی کہا ہے کہ سال 2016-17 کا بجٹ حقائق پر مبنی ہوگا۔ مارچ کے مہینے میں بجٹ پیش ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہ حقائق پر مبنی ہوتا ہے یا نہیں۔ البتہ سال 2015-16 کے بجٹ کا جائزہ لیں تو آئندہ مالیاتی سال کے بجٹ کا خاکہ ضرور کھینچا جا سکتا ہے۔ سال 2015-16 میں
1,21,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। अब मालियाती साल खत्म होने के लिए 1 माह का वक्त रह गया है और अब तक सिर्फ 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, यानी 60% बजट खर्च करना अभी बाकी है। रिवायत के मुताबिक मालियाती साल के आखिरी महीने में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ महकमों के लिए फंड्स जारी किए जाते हैं। अब हुकूमत इससे मुताल्लिक़ जारी किए जाने वाले अहकामात को भी पोशीदा रखना चाहती है। इसके लिए हुकूमत ने सरकारी पोर्टल को बंद कर दिया है ताकि हुकूमत जो रकम जारी करेगी उसके बारे में अवाम को मालूम ना हो सके कि हुकूमत ने किसको कितना फंड जारी किया है। हुकूमत इस तरह हक़ाइक़ पर पर्दा डालेगी तो हक़ाइक़ पर मबनी बजट की उम्मीद कहाँ रखी जा सकती है। 18 फरवरी से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव महकमे जाती तौर पर बजट का जायज़ा लेंगे। बजट के सरगर्मियों के आगाज़ से पहले ही चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों के HODs को हिदायत दी है कि वो फजूल खर्ची पर काबू पाते हुए बजट का मसवदा तैयार करें और इन स्कीमों को भी बजट से हज़फ करें जो मौसर अंदाज में नहीं चलाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक रियासत में जुमला 823 स्कीमें जारी हैं। उनमें कई स्कीमों की कटौती के भी अहकामात जारी किए गए हैं। मुमकिन है कि आवाम पर भी कुछ बोझ डाला जाएगा। इन हालात में मिशन भागीरथ, मिशन काकतिया, डबल बेडरूम जैसे भारी रकम वाले प्रोग्राम्स को फंड्स मुख्तस करते हुए बहबूदी प्रोग्रामों के लिए फंड्स मुख्तस करना हुकूमत के लिए मुश्किल काम है, क्योंकि पहले ही हुकूमत ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए महकमे आबपाशी को 25,000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने अवाम को जो हसीन ख्वाब दिखाए हैं, क्या वो साल 2016-17 के बजट के ज़रिए हकीकत में बदलेंगे या फिर ख्वाब ही रह जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दिल्ली के दौरे के बाद इतवार की शाम शहर वापस हो गए। वज़ीर आला ने अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करते हुए रियासत के लिए कई नुमाइंदगियाँ की। वज़ीर आला पीर के दिन ज़िले खम्भम के 2 रोज़ा दौरे के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर वो ज़िले के ओहदेदारों के साथ इजलास के अलावा एक रिजर्वायर का संग बुनियाद रखेंगे और 2 जलसे आम से खिताब करेंगे। तेलुगुदेशम के साबिक MLC पी नागेश्वर राव ने TRS में शमूलियत का ऐलान किया। इन्होंने इतवार को वज़ीर टी नागेश्वर राव से मुलाकात की और ऐलान किया कि वो तेलुगुदेशम से मुस्ताफ़ी होकर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में TRS में शामिल होंगे। इन्होंने कहा कि खम्भम ज़िले की तरक्की के लिए वज़ीर आला और वज़ीर टी नागेश्वर राव की जानिब से शुरू करदा फलाही स्कीमों से मुतासिर होकर वो TRS में शामिल हो रहे हैं। TRS में उनकी रस्मी और बाज़ाब्ता शमूलियत वज़ीर आला के दौरे खम्भम के दौरान होगी। तेलुगुदेशम पार्टी के तर्जुमान वी रामैया ने कहा है कि साबिक वज़ीर डी मानिक्यावरा प्रसाद तेलुगुदेशम में शामिल ज़रूर हो गए हैं, लेकिन उनमें कांग्रेस की बू बाकी है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मानिक्यावरा प्रसाद की जानिब से मादिगा तबका के लिए M कृष्णा मादिगा को कायद करार देना मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि मानिक्या प्रसाद नहीं जानते कि तेलुगुदेशम में किस तरह काम किया जाता है। इनको मज़ीद मालूमात की ज़रूरत है। SC ज़ुमराबंदी का मसला वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू हल कर सकते हैं, इसके लिए M कृष्णा मादिगा की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अब अपना बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का करना चाहते हैं। GHMC इंतखाबात में पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करने में अहम रोल अदा करने वाले KTR को वज़ीर आला ने बलदी नज़्म व नुस्ख़ के क़लमदान की इजाफ़ी ज़िम्मेदारी सौंपी है। इत्तला मिली है कि इसी तरह नारायण खेड़ में पार्टी की कामयाबी पर हरीश राव को इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा की इजाफ़ी ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि नारायण खेड़ में हरीश राव ने पार्टी की कामयाबी के लिए कोशिशों में अहम रोल अदा किया है। तेलुगुदेशम लीडर जी मुद्दू कृष्णमा नायडू ने कहा है कि कापू तबके को BC में शामिल करने का मसला काफ़ी पुराना है। मीडिया से बात करते हुए 2004 और 2009 में भी YSR राजशेखर रेड्डी ने भी कापू तबके को BC में शामिल करने का आवाम से वादा किया था, लेकिन इस पर अमल आवरी नहीं की गई। आज जगन मोहन रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू को धोखेबाज करार देना मज़ाहिका ख़ैज़ बात है। इन्होंने कहा कि इस मामले पर पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए YSR कांग्रेस पार्टी के गुंडा कारकुन भी जिम्मेदार हैं। इन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू इस मसले की यकसुई के लिए संजीदा हैं।
दौलतमंद तेलंगाना रियासत के मुलाजमीन हुकूमत की जानिब से उनके लिए किए गए वादों पर अमल आवरी का इंतजार कर रहे हैं। तेलंगाना में पहली पीआरसी के तहत मुलाजमीन को 43% फिटमेंट देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक हुकूमत ने इसकी अदायगी नहीं की। इस फैसले से 5,000 करोड़ रुपए का बोझ हुकूमत के खजाने पर पड़ा है। इसके अलावा हाल ही में काबीना इजलास में लिए गए गिरानी अलाउंस के फैसले पर भी पर्दे पड़े हुए हैं। इजलास में 3.14% गिरानी अलाउंस का इजाफा करने से मुताल्लिक फैसले पर कोई वाज़ेह तस्वीर सामने नहीं आ रही है कि हुकूमत ने इस सिलसिले में फैसला लिया है या नहीं। अगर हुकूमत ने गिरानी अलाउंस में इजाफे का फैसला लिया तो जुलाई 2015 से इस पर अमल आवरी होगी। इससे हुकूमत पर मजीद 754 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इस सिलसिले में फाइनेंस डिपार्टमेंट के आला ओहदेदारों की जानिब से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ मुलाजमीन का कहना है कि मालियाती साल के अवाखिर में उनकी रकम जारी की जा सकती है। बाज़ मुलाजमीन का कहना है कि वो इसके बारे में उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तारीखी चार मीनार जो सारी दुनिया में हैदराबाद की पहचान है, अपनी तारीख के साथ साथ अपनी खूबसूरत तर्ज तामीर के लिए भी मशहूर है। लेकिन चंद सालों से ऐसा महसूस होता है कि महकूमे आसार कदीमा इस तारीखी इमारत के साथ लापरवाही बरत रहा है। कभी आहक पाशी के नाम पर तो कभी इसको बंद करते हुए सयाहों को मायूस किया जा रहा है। दुनिया के कोने कोने से आने वाले सयाह चार मीनार की खूबसूरती को मंद पड़ता देखकर हैरान है, क्योंकि चार मीनार की जो खूबसूरती उनके जहनों में थी वो इन्हें नहीं दिखाई दे रही है। चार मीनार के दामन में अवाम की हिफाजत के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरा पोल से सयाह काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे। उनका कहना है कि अवाम की हिफाजत भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन चार मीनार की खूबसूरती भी तो ज़रूरी है। दिल्ली से आई हुई एक लड़की ने कहा कि सीसीटीवी पोल को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए ताकि हमारे जहनों में चार मीनार की जो तस्वीर है यहाँ पहुँचने के बाद वो तस्वीर साफ दिखाई दे। ये यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि सब टूरिस्ट वगैरह आते हैं। हम दिल्ली से आए हैं, हमारी पिक्स वगैरह लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो इसको आप, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, बट आप इसको कहीं साइड में लगा दीजिए ताकि फोटोज में प्रॉब्लम ना हो। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, तो यहाँ घूमते हुए देख रहा हूँ कि यहाँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और पोल की वजह से। और पोल अगर दूसरा सीसीटीवी लगा हुआ है इधर, पर ये अगर दूसरा कहीं लगा होता तो अच्छा होता है। महकूमे तालीम ने 10वीं जमात के इम्तिहान के दौरान इम्तिहानी मराकज़ पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का फैसला वापस ले लिया है। ज़राए के मुताबिक जारिया साल 10वीं जमात के इम्तिहानात के दौरान नकल नवीसी और दीगर सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए महकूमे तालीम ने सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया था। ताहम इस फैसले को रूबे अमल लाने के लिए पेश आ रही मुश्किलात को देखते हुए फैसले को वापस लिया गया है। 10वीं जमात के इम्तिहान के लिए 2,600 मराकज़ कायम किए जाएंगे, जिनमें 1,135 मराकज़ खानगी स्कूल्स में कायम किए जा रहे हैं। इन खानगी स्कूल्स में सिर्फ 202 स्कूल्स में सीसीटीवी कैमरों की सहूलत है और फ़ी मराकज़ पर 15 कैमरों की ज़रूरत है और इसको पूरा करने के लिए करीब 1.5 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। इन हालात में फ़ंड्स का हुसूल मुमकिन नहीं है, इसलिए महकूमे तालीम ने इस फैसले पर आइंदा तालीमी साल से अमल करने का फैसला लिया है। बलदी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 44 हलकों से शानदार कामयाबी पर मुख्तलिफ मकामात से अवाम की दारुस्सलाम आमद और मजलिस कायदीन को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। ज़िले मेदक के सिद्दीपेट से मुकामी मजलिस ज़िम्मेदारों और नौजवानों के ग्रुप ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला की भी गुलपोशी की गई। चंद्रायन गुट्टे से भी नौजवानों के ग्रुप ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने शेखपेट और नानल नगर के नौ मुंतखब अराकीन बलदिया पर जोर दिया है कि वह आवाम के बलदी, बरक़ी और आबरसानी मसाइल की यकसोई के लिए मुतहरिक हो जाएँ। हकीमपेट में मजलिस ज़िम्मेदारों और मुकामी अवाम के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए रुकन असम्बली ने मजलिस को शानदार कामयाबी दिलवाने पर राय दहिंदों का शुक्रिया अदा किया और आवाम से अपील की कि अपने किसी भी मसले की यकसोई के लिए वो अवामी नुमाइंदों से राबता करें।
महकमे बरकी की जानिब से NM गुड़ा, सलाला, बारकस, अतापुर और CRPF के इलाकों में बरकी के सियानती काम किए जा रहे हैं। प्रेस नोट के मुताबिक 15 फरवरी को सुबह 10 बजे से 5 बजे शाम तक नंदी, मूसलागुड़ा, मारुति नगर, शिवाजी नगर, खुदा कॉलोनी, CCMD और अतापुर के इलाकों में बरकी सरबराही मजदूद रहेगी, जबकि सलाला, पीली दरगाह और चिक्की पहाड़ के इलाकों में पीर के दिन ही 9 बजे से सुबह से दोपहर 12 बजे तक और हरिजन बस्ती, मैसरम और वृंदावन बाउली के इलाकों में दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक बरकी सरबराही मजदूद रहेगी। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कचरे के अंबार की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि किशनबाग, नवाब साहब कुंटा के अलावा दूसरे महल्ले जात में कचरे के अंबार सड़कों तक फैल गए हैं। एक तो शहरियों को मच्छरों की अफजाइश की वजह से डेंगू बुखार का खतरा लाहिक है, दूसरे एक और मूजी जिका वायरस की वजह से मजीद परेशानी लाहिक है। कचरे की वजह से फिजा में ताफून फैल गया है और जरासीम की अफजाइश हो रही है, जिससे छोटे बच्चे और ख़वातीन ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। GHMC का अमला बास औकात कचरे की सफाई के लिए इक़दाम करता है, लेकिन इस पर मुस्तकिल तौर से अमल नहीं किया जाता। हुकूमत अगर महकमे बलदिया में काम करने वाले जारूब कश मुलाजमीन पर नज़र रखने और इनको सख्ती से पाबंद करे तो इस मसले की यकसोई हो सकती है। योम बेराह रवी यानी योम आशिकान के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस दिन का बाइकआउट करने वाली तंजीमों के कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दिन के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों ने शहर के बेशतर इलाकों से रैलियाँ निकाली और पुतले नजर आतिश किए। मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस ने ऐसी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जो बज़ोर ताकत अवाम को योम आशिकान मनाने से रोक रहे थे। मंगोड़ बस्ती मल्लेपल्ली में DCP वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव की निगरानी में मुफ्त हेल्थ कैंप का अहतमाम किया गया। इस मौके पर डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करके मुफ्त दवाएं भी तकसीम की। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में कैंप से इस्तेफादा किया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने बगैर टिकट सफ़र करने वाले करीब 640 मुसाफिरों को जुर्माना किया है। इसके अलावा SCR ने अपने साथ अनबुक लगेज ले जाने वाले 135 मुसाफिरों को भी चालान किया है, जिससे महकमे रेलवे को 1,93,000 रुपये की आमदनी हुई है। महकमे की जानिब से 10 से 12 फरवरी तक सिकंदराबाद, हैदराबाद, लिंगमपल्ली, सिकंदराबाद फलकनुमा रूट्स पर MMTS की ट्रेनों में बगैर टिकट सफ़र करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। सौंतले बाप की जानिब से अपनी 2 लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गोविंद नामी शख्स ने 6 साल कबल जिस खातून से शादी की थी उसकी 2 लड़कियां थीं। लड़कियां जवान होने पर वो उनको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर कर रहा था। 19 साला मोनिका और 13 साला सोनी सौंतले बाप के जुल्म से तंग आकर घर से चली गई थी। गोविंद ने लड़कियों की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने तहकीकात करते हुए लड़कियों को हिरासत में ले लिया। तब पुलिस के सामने सारा मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोविंद को हिरासत में ले लिया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हुकूमत को अक़लियती बहबूद की स्कीमों पर अमल आवरी में कोई दिलचस्पी नहीं। मालियाती साल ख़त्म होने के लिए सिर्फ 1 माह बाकी। 1000 करोड़ रुपये के मिन जुमला 400 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं किए गए। तेलंगाना मुलाजिमीन के फिटमेंट में 43% इजाफे के फैसले पर अमलावरी का 1 साल से इंतज़ार। गिरानी अलाउंस में इजाफे के फैसले पर भी पर्दे। रियासती असम्बली का बजट इजलास 10 मार्च को शुरू होने का इम्कान। 10 मार्च तक खम्मम, वरंगल और सिद्दीपेट के बलदी इंतखाबात का अमल मुकम्मल कर लेने का मंसूबा। तारीखी चारमीनार की तज़यीन नौ के काम में इंतहाई सुस्त रफ्तारी। सयाहों को मायूसी।
حفاظت کے نام پر لگائے گئے سی سی ٹی وی پول سے بھی سیاح ناراض۔ اور 10ویں جماعت کے امتحان کے دوران امتحانی مراکز پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا فیصلہ ملتوی، روب عمل لانے میں مشکلات کے پیش نظر فیصلہ۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔